Good morning, students. Today I will revise you the third chapter of civics. Why do we need a parliament? हमें संसद क्यों चाहिए? We in India pride ourselves on being a democracy. हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे. It is these elements that together make us a democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्णय करते हैं. इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the Constitution. इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है, और इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है. Why should people decided? लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? India, as we know, became independent on 15th August 1947. जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था. इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी. तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया. वे
स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अंडर colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. औपनिवेशिक शासन के तरह लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। The freedom movement changed the situation. स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected रिप्रेजेंटेशन। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। While these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में
तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने विचार, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। The dreams and experience of the freedom struggle were made considered in the Constitution of independent India that laid down the principle of universal adult franchise. स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। That all adult citizens of the country have the right to vote. इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। People and their representatives, लोग और उनके प्रतिनिधि। These take off point for a democracy is the idea of consent, that is the desire, approval and participation of people. सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? वन वे ऑफ डूइंग सो
As you read in through election, people would elect their representatives to the parliament. Then one group from among these election representatives forms the government. जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट which is made up of all representatives together controls and guides the government. जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and political life टेक्स्ट बुक। प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। यू आर फैमिलियर विथ हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर चूजन एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की भूमिका। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। These are participation by people in the decision making process and government by consent. ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट
लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू members constituencies as shown in the map on page 41। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, ईच ऑफ दीज constituencies elects one person to the parliament। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। द कैंडिडेट्स who contest election usually belong to different political parties। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। थैंक यू।